the lives in the state of Uttar Pradesh, and also along with the houses, basic amenities of electricity, water and toilets are also being provided to the people there in the rural areas to ensure they get quality life. So more or less this was the gist of what the Prime Minister said during this function. In the bulletin that follows, we'll get you further details of the address. As of now, that's it from my side. Thanks for watching. Bye-bye. ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे इंक्लूड है डालेंगे। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। देश की बेटियों को समर्पित विशेष कार्यक्रम। जानेंगे देश की उन महिलाओं से जिन्होंने जिंदगी की तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया। बेटियां जिनका परिवार ने दिया साथ तो उन्होंने की हर बाधा पार, जिनकी जिंदगी हम सब के लिए एक आईना है। आइए मनाएं बेटियों की उपलब्धियों का जश्न। 3 दिन 3 अलग अलग एपिसोड। और सीधे आपको लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस ब्रीफिंग। Good afternoon, friends. We came here day before yesterday in the evening around 5:30. From 6:30 till about 9 o'clock, we had a presentation by the CEO and Vivek Bungari, who is the IG in charge, as we call him, nodal officer for the police coordination. My colleague Devendra Sharma, one of the senior most officers in the ECI, had preceded. He was here for 2-3 days last week, just to have a feel of the entire scenario. We have this normal system of EAC, Joint Secretary and above level officers who look after each and every state in India to go there prior to the visit of the commission. Then next day, we do what we always do as a part of our SOP, established SOP, and interaction with the political parties. Because we are of the firm view that after the voter, the most important edifice of the democratic system is political parties and political entities. After that, we had a meeting with the central and state enforcement agencies. After that, in the afternoon, we sat with all the deputy commissioners, SPs, divisional commissioners, and IGs. This meeting ended yesterday night at about 10 o'clock. I was telling them that it was only in UP that we finished the meeting by 12 o'clock. So they should, even if they feel unhappy, they should keep that we have had meetings till 12 o'clock also. Today morning, we had our first meeting with Chief Secretary and his senior officers, which included DGP, Principal Secretary Health,
Power, Transport, and other secretaries who are required functionally for the meeting. After that, now, as you always do, we come before you, the fourth estate of the country, to present an account of our visit and to share with you our thoughts and to listen to your thoughts. The term of State Assembly in Assam is due to expire on 31st May 2021. You see, when we talk of term of any state, we take several factors in mind. We have such a varied geography, different seasons. For example, you cannot have an election. You have to kind of take account of Bihu while talking of Assam. You have to take account of Deepavali in North. You have to be sensitive to the Onam celebrations in Kerala. You have to be sensitive to Pongal celebrations in Tamil Nadu, so on and so forth. We are such a huge and diverse country. That's why we are called a subcontinent. And then we also take into account the state of infrastructure, the state of the weathers, and in the instant case, can you please switch off your mic? I request you, gentlemen, on the dais. In the case of these elections, we also have to take into account the exams to CBSE. Our senior most officer, Senior Monitor Devendra Sharma, the Secretary General Shri Umesh Sinha, he had a series of meetings with the chairman of the CESP, and then they kind of work out some kind of acceptable framework. This time the exams to the CBSE, you must have read in the papers, most of you, especially those who cover education, would have covered it too, are going to start from 4th May. So everything has to kind of finish around that, or preferably prior to that. And you're also aware that very recently the Commission had conducted Bihar elections, 7.50 crore population. And at that time, COVID was at its peak. You may remember, some of you may have followed that press conference, that I said that for us, it's a leap of faith and not as a leap in the dark. But the leap of faith, this sentence cannot be spoken unless your colleagues have spent, virtually burnt midnight oil. Here is Chandrabhushan, who is in charge of Bihar, just like he is in charge of Assam. These people, they worked, literally they put midnight oil, they burned midnight oil, and we were able to take care of elections to Bihar. तो गुवाहाटी से निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता के दृश्य भी आप देख रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इसे संबोधित कर रहे थे और असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग का ये महत्वपूर्ण दौरा है। इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जाएं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाए, इसी का जायजा चुनाव आयोग ने वहां जाकर लिया और कई ज़रूरी मुलाकातें भी की। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रजनी सिंह। भारत का वैक्सीनेशन अभियान अब सहयोगी देशों तक भी पहुंच रहा है। कैसे, आज मिड डे प्राइम में डालेंगे इस बड़ी खबर पर नजर। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के 10वें दौर पर भी होगी चर्चा और गुरु गोविंद साहिब जी की जयंती पर देश कर रहा है उन्हें नमन। इसके अलावा गोवा फिल्म फेस्टिवल में आज के क्या हैं आकर्षण, अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की इन तमाम बड़ी खबरों पर। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दी वित्तीय सहायता की बात। प्रधानमंत्री ने इस कदम को सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में अहम योजना करार दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के समय में सभी की मानवीय मदद के लिए भारत है प्रतिबद्ध। भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, सेशेल्स सहित म्यांमार और नेपाल के लिए भारत ने आज से शुरू की कोविड वैक्सीन की सप्लाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अब तक 6,31,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके। भारत की वैक्सीन को बताया सुरक्षित। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की कल हुई बैठक। सूचना प्रसारण मंत्री ने राहुल गांधी पर देश और किसानों को गुमराह करने के लगाए आरोप। देश भर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती। आज के दिन देश गुरु गोविंद सिंह जी के साहस, पराक्रम और आध्यात्म के आदर्शों को कर रहा है याद। देश भर में गुरुद्वारों में भक्तों की उमड़ी भीड़। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लिंकन मेमोरियल पर उन 4 लाख लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान गंवाई अपनी जान। अपने विदाई संबोधन में ट्रंप ने नए प्रशासन को दी शुभकामनाएं। और खेलों की दुनिया में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विराट कोहली, ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी। पहला मैच 5 फरवरी को चेन्नई में खेला जाएगा। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG के तहत 6.1 लाख लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी की। इसमें 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किश्त मिली है, जबकि 80,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें दूसरी किश्त प्रदान की गई है। पीएम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि आज नहीं तो कल उनका घर हो सकता है। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती। अगर अपना घर होता है एक निश्चिंतता होती है,
उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। पीएम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि जारी करने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए होता था, पीएम ने इसे 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास में तेजी से काम हो रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से देश की लाखों लाख बहनों को आजीविका के अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र को अधोसंरचना मिले, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन जीना सुगम हो, रोजगार के अवसर प्रारंभ हो। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई, 1,20,000 रुपए प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने लगाया है। तो अपने घर का सपना अब साकार हो रहा है, वो भी उन लोगों के लिए जिनके लिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल था। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, उन लोगों के लिए जिनके लिए रोजी रोटी का मसला एक बड़ी समस्या थी, उनके सर पर अब छत होगी, उनके घर का सपना अब पूरा होगा। जी बिल्कुल रजनी, और इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सपना देखा भी नहीं होगा कि उनका अपना छत होगा या उनके कच्चे मकानों के बदले पक्के घर बन पाएंगे। और सिर्फ घर ही नहीं, घर में वो तमाम सुविधाएं भी जो दूसरे किसी भी संपन्न व्यक्ति के घर में होती है, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, शौचालय की सुविधा हो। तो एक तरह से कंप्लीट, एक तरह से पूरी सहूलियतों के साथ वो घर उनको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े सपने के पूरा जैसा होने हैं। और प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर सही कहा कि ये एक तरह से ये घर ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि आत्मविश्वास भी देता है कि वो एक तरफ घर से निश्चिंत होकर वो बाकी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं या बड़े सपने देख सकते हैं। तो एक तरफ उस तरफ ले जाता है तमाम लोगों को। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सपना करीब 6,10,000 लोगों का ये पूरा हुआ है। हमको पता है कि कुछ लोगों को पहली किस्त मिली है तो कुछ लोगों को दूसरी किस्त मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर ये योजना जो इस तरह से रची गई है कि वैज्ञानिक तरीके से इसकी निगरानी भी होती है कि सिर्फ पैसा गरीबों के खाते में नहीं पहुंचता है, लेकिन अंत में एक उनको पक्का घर और तमाम सुविधाओं के साथ वो घर भी मिलता है। रजनी, है कि वो तबका जो अब तक शहरों में, गांवों में निर्माण कार्यों में लगा था, जो दूसरों के लिए घर बना रहा था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की दीवारें होंगी, खुद की छत होगी, उसके लिए अब घर मिल रहा है। और साथ ही मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक सुरक्षा भी उन्हें मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए, और खास तौर से बीते अगर 4-5 वर्षों की बात की जाए, सिर्फ अकेले इस साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है मनरेगा का बजट। तो जिस तरह से जो परिस्थितियां गांव के लोगों को, गरीबों को सशक्त करने के लिए, देखिए बीते 4-5 वर्षों में जितने घर बने हैं उतने शायद ही पिछले कई दशकों में बन पाए थे। सिर्फ शहरों के गरीबों की बात नहीं है, गाँव के गरीबों की बात नहीं है। एक तरह से ओवरऑल अप्रोच गरीबों को लेकर, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई गई, रजनी, 1.25 करोड़ घरों की चाबियां ग्रामीण इलाकों में, तो करीब 1 करोड़ घरों की चाबियां शहरी इलाकों में दी गई है। 2.25 करोड़ का घर का मतलब होता है करीब परिवार के 10-12 करोड़ सदस्यों को अपना एक छत मिलना। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ सरकार की जो अन्य जो योजनाएं हैं
उन तमाम योजनाओं को जोड़ना ताकि घर के साथ साथ उनको और भी तमाम सुविधाएं मिले, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सके, उनके रोजगार की चिंता हो सके, तो वो एक तरह से ईज ऑफ लिविंग बढ़ाता है। जिस तरह से शहरी आबादी को ईज ऑफ लिविंग की जरूरत है, ग्रामीण भारत में वो उपलब्ध करा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अब इंटरनेट से गांवों को जोड़ा जा रहा है। स्वामित्व योजना का उन्होंने जिक्र किया, जिससे जो गरीब है, आम व्यक्ति है, और भी ज्यादा सशक्त हो सकेगा। तो ये तमाम योजना एक तरह से गरीबों का एक तरह से सशक्तिकरण उसके जरिए हो पा रहा है। बिल्कुल। और जिन लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है, बार बार उन्हें जगह बदलनी होती है, लेकिन अब एक स्थायी घर जब उन्हें मिलेगा तो वो वहीं रहकर बच्चों की शिक्षा भी उन्हें दिला पाएंगे और एक ज्यादा बेहतर भविष्य उनको मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये चेहरे की खुशी जब प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे तमाम लोगों से, इनमें से कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया, ये भी कहा कि बार बार आपकी सरकार बने, इस तरह का एक संदेश दिया। तो ये गरीबों के भीतर से जो ये एक आवाज निकल रही है, ये उनके भीतर जो संतोष का भाव हो रहा है कि नहीं, अब हमको घर की चिंता नहीं हो सकेगी, अब हमारे बच्चों को भी वो अवसर, वो शिक्षा मिल पाएगी जो तमाम अन्य लोगों को उपलब्ध हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति पाने जैसा है, ये बहुत बड़े सपने के पूरा होने जैसा है। और निश्चित तौर पर ये एक तरह से सशक्त भारत की तरफ, नए भारत की तरफ पूरे देश को बढ़ाने की कोशिश भी है। और देश का आम व्यक्ति, देश का गरीब व्यक्ति, किसान, श्रमिक मजदूर अगर मजबूत होता है तो एक तरह से पूरे देश के विकास को एक नई रफ्तार, नई तरक्की मिलती है। जी सुधाकर, जब प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बात कर रहे थे तो बार बार पूछ रहे थे क्या आपको कोई समस्या हुई, क्या किसी बिचौलिए ने परेशान किया, तो पिछले बीते सालों में जो ये सरकारी योजनाएं पिछड़े तबके तक पहुंची हैं, उसमें बिचौलिए पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और पूरी तरह से लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। जी रजनी, बिल्कुल और ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि बीती सरकारों ने कोई योजना शुरू ही ना की हो, लेकिन सोच और अप्रोच का फर्क बहुत ज्यादा दिखता है मोदी सरकार और पहले की सरकारों में। और खासतौर से एक पूर्व प्रधानमंत्री ने यहाँ तक भी कहा था कि 1 रुपए अगर दिल्ली से चलता है तो गांव के किसानों, गरीबों तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बच जाता है, यानी 85 पैसे बीच में बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हम जानते हैं किस वैज्ञानिक तरीके से डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे गरीबों के खाते में, सीधे किसानों के खातों में पैसे भेजा जा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, बल्कि हमने देखा कि 13 लाख करोड़ रुपए पिछले 4-5 वर्षों में गरीबों के खाते में भेजे गए। कोरोना काल में ये कितनी मददगार रही है और निश्चित तौर पर इसने न सिर्फ एक तरह से प्रशासन में पारदर्शिता इसके वजह से आया, बल्कि बिचौलियों का, भ्रष्टाचारियों का इसकी वजह से खात्मा भी हुआ और सीधे गरीबों तक जो योजना बन रही है वो सीधे पहुंच रही है। रजनी जी, निश्चित तौर पर तो ना केवल पिछड़े तबके के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं, बल्कि पूरी तरह से योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मिर्ची प्राइम में अब बात ताज़ा खबर की। तो भारत का टीकाकरण अभियान जो है वो अब देश की सरहद भी पार कर रहा है। मुंबई के शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप आज तड़के भूटान की राजधानी थिम्पू के लिए रवाना की गई। इससे पहले भारत ने कल अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों को टीके के निर्यात की घोषणा की थी। भारत की तरफ से यह पहल अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों के अनुरोध पर की गई है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत ने कोविड महामारी से लड़ने में अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मानवता को प्रमुखता दी है। जिन देशों को टीके की आपूर्ति आज से की जा रही है उनमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स शामिल हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की उनकी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। और विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि टीकाकरण की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले हफ्तों और महीनों में सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेशों में आपूर्ति से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू निर्माताओं के पास घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक रहे। टीकों की डिलीवरी से पहले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासनिक और परिचालन पहलुओं को कवर करते हुए टीकाकरण प्रबंधकों, कोल्ड चेन अधिकारियों,
संचार अधिकारियों और प्राप्तकर्ता देशों के डेटा प्रबंधकों के लिए राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले भी भारत ने कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में अन्य देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर और पैरासिटामोल गोलियों के साथ साथ डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति की थी। भारत ने क्लिनिकल परीक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के तहत अपनी क्लिनिकल क्षमताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई पड़ोसी देशों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। ये पुलिस को आदेश जारी करने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम निर्देश आज आया है। इसके संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछली सुनवाई टल गई थी और आज सुनवाई होनी थी। इसमें यह फैसला आया है कि ट्रैक्टर रैली पर क्या फैसला लेना है, कौन आएगा कौन नहीं, ये निर्धारित करने का जो अधिकार है वो पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस के पास है। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर रैली के संबंध में अहम निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकार है वो दिल्ली पुलिस के पास है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विकास। रजनी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है फिर कि जैसा पिछली 2 सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला पूरी तरह से एक एग्जीक्यूटिव का मामला है, यानी कार्यपालिका से जुड़ा मामला है और वो ये तय करे कि क्या कदम उठाए जाने हैं। अदालत इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये बेहद आपत्तिजनक होगा अगर कोर्ट किसी तरह की ऐसी किसी रैली को रोकने या अनुमति देने के बारे में कोई भी अपनी राय रखता है। तो ये पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है। ये हालांकि कोर्ट ने जरूर जो वकील पेश हो रहे थे दोनों पक्ष के, खासतौर से जो किसान संगठनों की ओर से वकील थे प्रशांत भूषण, उनसे ये कहा कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर रैली है या किसी भी तरह की कार्रवाई, आप ये कम से कम आपसे उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। जो भी कार्यक्रम होगा वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। अभी कार्यक्रम होगा या नहीं हो पाएगा ये तय करना दिल्ली पुलिस का काम है। इसके बावजूद अगर कोई भी किसान किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो कम से कम वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, इतनी सीजीआई ने टिप्पणी जरूर की। साथ ही अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि आप अपनी अथॉरिटीज से बात कीजिए। साथ ही दिल्ली पुलिस से बात करने को बोला कि दिल्ली पुलिस से आप बात कीजिए और ये देखिए कि आप इस मसले से कैसे निपटेंगे, आपके पास क्या विकल्प हैं, ये आप खुद तय कीजिए। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि करीब 5000 ट्रैक्टर दिल्ली में किसी भी जगह पर जब लाए जाएंगे तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इस पर कोर्ट ने उनको सीधे सीधे ये सुझाव दिया कि आप अपनी अथॉरिटीज से बात करें, वो लोग आपको सही जो भी सुझाव है, जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई, उसके बारे में वही आपको बता सकते हैं। कोर्ट कोई आदेश इस मामले में नहीं देगा। बिल्कुल विकास, 26 जनवरी कोई आम दिन नहीं है, उस दिन लोकतंत्र की गरिमा का दिन है। ऐसे में और कोविड चुनौती भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं जब ये याचिका दायर की गई थी तो क्या सुरक्षा व्यवस्था का सवाल मन में रहा होगा? और अब जब बॉल जो है वो दिल्ली पुलिस के पाले में है, ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, जो याचिका के जब दाखिल की गई थी तब भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब 5000 ट्रैक्टर अगर दिल्ली में, अगर हम ये भी मान लें कि राजपथ पर नहीं लाए जाएंगे और दिल्ली में किसी दूसरी जगह पे यानी कि रिंग रोड या कहीं और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो वो 5000 ट्रैक्टर के आने के समय कितने लोग होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, यानी कितना पुलिस फोर्स चाहिए होगा, जबकि 26 जनवरी के दौरान पुलिस की अलग अलग जगहों पे तैनाती रहती है, उनके पास पहले ही काफी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग दिल्ली में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से में आना चाहें, तो एक बहुत ही अव्यवस्था का माहौल हो जाएगा। और अगर पुलिस रोकने की कोशिश करती है, उस दौरान कोई ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े या शांति का माहौल जो है वो उस पर किसी तरह का कोई असर हो। तो पुलिस के सामने चुनौती यही है कि इतने बड़े जनसमूह को
26 जनवरी के दिन वो उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उनको आने या ना आने के दोनों ही परिस्थितियों में कैसे इतने बड़े जनसमूह को वो किसी तरह से रेगुलेट कर पाएंगे, किसी तरह से उनको नियंत्रण में रख पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 26 जनवरी का दिन बड़ा दिन है देश के लिए और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का सवाल भी जायज है और ये अहम निर्देश दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और अपनी पिछली खबर पर लौटते हैं जिसमें मुंबई के शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप आज तड़के भूटान की राजधानी थिम्पू के लिए रवाना की गई है। तो भारत का जो टीकाकरण अभियान है वो अब भारत के पड़ोसी देशों तक भी पहुंच रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों तक मानवता को ध्यान में रखकर ये मदद कर रहा है और पड़ोसी देशों की ओर से भारत से आह्वान किया गया था कि वैक्सीनेशन की डोज, वैक्सीनेशन की खुराक उन तक पहुंचाई जाए और ये शुरू किया गया है कल से अभियान और अब तक भूटान में ये खेप पहुंचाई जा रही है। आज कई देशों में भारत की वैक्सीनेशन डोज पहुंचने वाली है। तो ये अहम पड़ाव है भारत के वैक्सीनेशन अभियान का। राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था, चरणबद्ध तरीके से वो किया जा रहा है। इसके बाद अब ये दूसरा चरण है जब सीमा पार भी भारत का वैक्सीनेशन अभियान पहुंच रहा है। और इस मैप के जरिए अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे भारत जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है वो मदद कैसे दूसरे देशों तक पहुंच रही है। कोविड टीकाकरण में भारत के पड़ोसी देशों को मदद। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद अब पड़ोसी देशों के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। उन्होंने आग्रह किया था, भारत अपने पड़ोसियों का आग्रह नहीं ठुकराया और उनकी मदद के लिए भारत ने कदम आगे बढ़ाए हैं। तो भारत से जो वैक्सीनेशन की डोज हैं हम आपको दिखाएं अगर मैप के जरिए, तो मुंबई से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ तक भेजी जा रही हैं और भी कई देशों तक वैक्सीनेशन की ये डोज पहुंचाई जानी है। वहां पर कुछ ज़रूरी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा करना है, उसके बाद ये डोज वहां भी पहुंचेगी। आज का दिन बड़ा अहम है, आज कई महत्वपूर्ण जगहों पर वैक्सीनेशन की डोज पहुंचने वाली है। भूटान है जिसमें मालदीव्स है, बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका से भी पुष्टि होना बाकी है और वहाँ पर कब ये चरण पहुँचेगा, कब ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, उसके बारे में अभी प्रतीक्षा की जा रही है। तो भारत के पड़ोसी देशों ने भारत से मदद का आग्रह किया था और मानवता को ध्यान में रखते हुए भारत ये मदद कर रहा है, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कि देश के भीतर वैक्सीनेशन की डोज कम ना पड़े, उनका स्टॉक कम ना हो, इसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और किस तरीके से ये डोजेस पहुंचेंगी, किस तरीके से ये पूरी खुराक पहुंचेंगी वैक्सीनेशन की, मालदीव्स है, सेशल्स है, जैसा कि आप हमारे मैप में देख सकते हैं। भारत से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये मदद के हाथ है, ये मानवता की किरणें हैं जो एक तरीके से मुंबई से उठ रही हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी और जिसमें सबसे पहले चरण में पड़ोसी देशों तक पहुंच रही है। तो भारत ने ये कोविड की लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता से लड़ी है और पिछले 1 साल के भीतर दुनिया ने भारत के हर कदम को सराहा है, फिर वो चाहे कोविड संक्रमण को रोकने की बात हो, भारत के कोविड वॉरियर्स की बात हो या फिर जो वादा किया था कि 1 साल के भीतर हम वैक्सीनेशन बनाएंगे और दुनिया भर में भी अब भारत अपनी वैक्सीनेशन की डोज पहुंचा रहा है। तो ये एक मजबूत भारत की निशानी है और इस मजबूत भारत की तरफ उसके पड़ोसी देश भी उम्मीद की नज़र से देखते हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। नीतेंद्र, एक लड़ाई जो भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ी, उस लड़ाई में अब पड़ोसी देश भी जुड़ गए हैं और भारत का वैक्सीनेशन अभियान जो है वो अब सरहद पार भी पहुंच रहा है। बिल्कुल रंगी, जो कोरोना की लड़ाई है वो भारत ने इसको एक तरह से जीता है और बहुत हद तक नियंत्रण में रखा है कोरोना को और यहीं से जो कोरोना के अंत की शुरुआत हो रही है, जैसे कि वैक्सीन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ ही साथ हमारे जो फ्रेंड कंट्री हैं, दोस्त हमारे मित्र हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको भी ये वैक्सीन पहुंचाई जा रही है और आने वाले दिनों में और भी देशों को ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और इस तरह से दुनिया के बाकी हिस्सों में भी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टीका है 60% जो वैक्सीन है वो भारत में बनता है और यहीं से निर्यात भी होता है। तो भारत अपने पड़ोसी देशों को, जो उनके मित्र देश, अपने मित्र देश है, उन तक ये टीका पहुंचा रहा है ताकि वहां भी कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि दुनिया इस बात को लेकर के भारत की तरफ निगाह लगाई हुई थी कि कैसे वैक्सीन अगर भारत में बनता है तो वो हमें मिलेगा और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि मानवता की लड़ाई है। ये महामारी बहुत ही
सदियों बाद इस तरह की महामारी आती है और इसको मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब ये मानवता के हित के लिए इस वैक्सीन को दुनिया के बाकी देशों में पहुंचाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी देशों को पहुंचाया जाए। जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ेगा, बाकी कंपनियां और भी उनको 2-3 कंपनी जो है उनकी जनरल के यहाँ उनकी जब आएगी एप्लीकेशन, उनको अप्रूवल मिलेगा तो ज्यादा संख्या में वैक्सीन प्रोडक्शन होगा भारत में। और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी उपलब्धता हमारे यहाँ होगी तो एक तरफ अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन लगाया जाएगा, साथ ही साथ बाकी जो दूसरे देश हमारे हैं उनको भी ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। जी जी नितेंद्र, तो अपने आप में एक बड़ा अभियान है जो अब सरहद पार भी पहुंच रहा है और भारत के सहयोगी देशों तक वैक्सीनेशन की मदद पहुंचाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। और मिड प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की वार्ता प्रस्तावित है। सरकार लगातार प्रदर्शनकारी किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल करने की गुजारिश कर रही है। एक तरफ जहां किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान की वार्ता सफल हो ये कांग्रेस नहीं चाहती है। और अनुज यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुज, आज 10वें दौर की वार्ता का चरण है। अगर बात करें तो किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हो रही, लगातार कोशिश सरकार की तरफ से जारी, आज एक और महत्वपूर्ण चरण। देखिए, बिल्कुल आज एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है किसानों और सरकार के बीच में। और पहले भी तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की गई हैं कि जो एक गतिरोध ये बना हुआ है इसको तोड़ा जाए। हालांकि किसान संगठन अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने बार बार किसानों के साथ यही अपील की है। कानून के जो प्रावधान हैं उस पर सरकार जो है उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रावधान जिन पर किसानों को किसी तरह की कोई आशंका है, और इस तरह का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया भी गया था। एमएसपी पर वो लिख के सरकार देने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और एक बार फिर से वार्ता रखी गई है। हाँ, सिर्फ एक बात ज़रूर है कि एक जो बातचीत का जो माध्यम है, संवाद का जो माध्यम है, किसान भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकले। और ये आज की जो बैठक है, किसानों की तरफ से ही ये तारीख और समय दिया गया था, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो एक बैठक होगी कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा, गतिरोध ज़रूर टूटेगा, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है किसानों को भी धरना और प्रदर्शन करते हुए। लेकिन सरकार की तरफ से ये बात स्पष्ट रूप पे कई बार पहले भी की जा चुकी है और एक बार फिर से इस बैठक के अंदर भी इस बात को रखा जाएगा कि ये जो नए कृषि कानून बने हैं ये पूरे देश के 86% उन छोटे किसानों के लिए बने हैं जो अलग अलग राज्यों के अंदर रहते हैं। उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ 1 या 2 राज्यों के किसानों की बातों को ध्यान में ना रखा जाए। और सरकार ने इन प्रदर्शनकारी जो आंदोलनकारी जो किसान हैं उनसे भी साफ कहा है कि आप अपने उन छोटे भाइयों का भी ख्याल रखिए जो देश भर के अंदर छोटे किसान हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए, एक बार फिर आज बैठक है, क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल अनुज, जहां एक तरफ सरकार की ओर से संवाद की लगातार कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है वो बरगला रहे हैं किसानों को, और आज जो है अहम इल्जाम भी लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से ये भी बड़ा अवरोध है जो कहीं ना कहीं संवाद बनने नहीं दे रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की बातें सामने आई थी कि इस किसान आंदोलन के मंच से कुछ विपक्षी दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और हमने देखा है कई विपक्षी दलों की कई बार प्रेस वार्ता भी होती है, या कुछ किसान संगठनों के इस आंदोलन के अंदर कुछ नेताओं ने जाने की भी कोशिश की थी। और इस बात को लेकर सरकार ने किसानों से कहा था कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच को प्रदान ना करें,
राजनीतिक रोटियां जो सेकना चाहते हैं उससे बचें, ये भी किसानों के साथ अपील की गई थी। हालांकि उसके बाद किसानों की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि कोई भी राजनीतिक जो दल है उनके मंच पर ना आए, उसका उन्होंने भी आग्रह किया था। लेकिन हाँ, फिर भी इस तरह की बातें सामने निकल कर ज़रूर आ रही हैं कि इन प्रदर्शनकारी जो संगठन है, किसान संगठन है, कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल हैं वो इस संगठन के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल अनुज, आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिए। फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिड प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। VCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद मिड प्राइम में आपका स्वागत है। और संसद के बजट सत्र को लेकर सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 29 जनवरी को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। और आइए अब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती से जुड़ी खबरें। जन की अरदास, जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ होता है। सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में सेवा की जाती है। गुरुद्वारों के आसपास खालसा पंथ की झांकियां भी निकाली जाती हैं। कई लोग घरों में कीर्तन भी करवाते हैं। पंजाब के अमृतसर में भी गुरुद्वारों में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर आज पटना में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के वातावरण के बीच ये पर्व मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों से और विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और कीर्तन के लिए पहुंचे हैं। बीते लगभग 1 सप्ताह से विभिन्न प्रकार के आयोजन यहां हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
इस अवसर पर गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ने कोरोना की वैक्सीन आने पर खुशी जाहिर की। गुरुद्वारे में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरी दुनिया में गुरुजी का जन्मदिन पूरी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। इस प्रकाश गुरु पर जो पूरे संसार को खुशी मिली है वो है कोरोना की वैक्सीन के रूप में। परमात्मा करे ये दवाई और जो धर्म मंदिरों में धर्म स्थानों पे दवा हो रही है ये असर करे और ये कोरोना का जो प्रकोप है ये छट जाए और पूरे संसार में खुशी आए। गुरु गोबिंद सिंह जी का अज जन्म दिहाड़ा सिख संगतां बहुत धूमधाम नाल मना रही ने। बड़ी चढ़दी कला वाला दिन आ। गुरु गोबिंद सिंह जी का यह जन्म दिहाड़ा जिहड़ा है ये पूरे वर्ल्ड दे विच मनाया जा रहा है। बाहर फॉरन दे विच सारे अमृतसर दरबार साहब इत्थे बंगला साहब मतलब पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़ा ये हैगा गुरु गोबिंद सिंह का जन्म दिहाड़ा ये मनाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह को आज देश कर रहा है नमन और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मेरा नमन। उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। वह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं थे बल्कि एक योद्धा थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है। देश भर में आयोजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शुभकामनाएं दी हैं लोगों को। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने आध्यात्म की और मानवता की सेवा की सीख दी। उसी सीख पर चलने की लोग आज कोशिश करते हैं और न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी ही दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया जा रहा है। देश भर के गुरुद्वारे खास अंदाज में सजाए गए हैं, आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। पूरे देश में और पटना में भी खास तौर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है ये पर्व। सलमान हैदर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सलमान, क्या वहां पर माहौल है? श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है सुबह से। सलमान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर देश नमन कर रहा है और पटना में भी कई रोज पहले से कई आयोजन किए जा रहे हैं। सलमान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मिड प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत की खबरों से हमें रूबरू कराएंगे अभिषेक। और बिजनेस की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अगर बात करें वैश्विक शेयर बाजारों की, तो वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक में सेंसेक्स बुधवार को अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।
कारोबार के दौरान 800 अंकों से अधिक की तेजी हुई और सेंसेक्स 49,400 के स्तर पर बना हुआ है। इस दौरान आईटी, फार्मा और ऊर्जा शेयरों में बढ़त देखने को मिली। अमेरिका में एक बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा होने की उम्मीद में भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। बाजार में बुल्स का दबदबा बरकरार है। निफ्टी 14,580 के पार निकल गया है। इसमें 60 अंकों की तेजी देखी जा रही है। वहीं निचले स्तरों से निफ्टी बैंक भी 130 अंक सुधरा है। मिड कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी है। और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को देश के विकास का इंजन भी कहते हैं। कोरोना के दौरान इस सेक्टर को भी नुकसान हुआ है। सरकार ने बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन करने और इस उद्योग को आर्थिक मदद देने के लिए कई कदम उठाए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना के कारण पिछले साल एमएसएमई सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। एमएसएमई सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी रखता है। देश के निर्यात में इसका 48% हिस्सा होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर को कई प्रोत्साहन दिए थे। पिछले साल सरकार ने कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया था। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है। वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग 20,000 करोड़ तो अच्छी रेटिंग वाले एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नवंबर माह तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 61 लाख एमएसएमई को 2,05,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। रिजर्व बैंक द्वारा गठित कामत समिति ने कर्ज पुनर्गठन को लेकर जिन क्षेत्रों की पहचान की है उनमें बिजली निर्माण, रियल एस्टेट, कपड़ा, औषधि, लॉजिस्टिक, सीमेंट, वाहन, कलपुर्जे तथा होटल, रेस्तरां एवं पर्यटन शामिल है। कामत कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक इन्हें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया। More than 5 lakh MSMEs have benefited from restructuring of debt permitted by RBI in the last year. The restructuring window was to end on 31st March 2020. Government has asked RBI to consider extending this window till 31st March 2021, one more year, so that whoever wants, they can go and approach. इस योजना के तहत कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। मूलधन चुकाने के लिए 5 वर्षों का समय दिया जाता है। इसमें 1 वर्ष मोरेटोरियम के होंगे और 4 वर्ष कर्ज चुकाने के लिए। ECLGS प्रदान किए गए ऋण में 5 साल का कार्यकाल होगा, जिसमें मूलधन चुकाने पर 12 महीने की मोहलत होगी। पिछले 1 साल में तय लक्ष्य से अधिक एमएसएमई से सार्वजनिक खरीदारी की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि एमएसएमई से होने वाली खरीदारी में आम सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में अलग से प्रावधान करना होगा। कोरोना काल के दौरान जो एमएसएमई एनपीए हो गए हैं, उनके लिए भी सरकार को कोई न कोई नया रास्ता निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी अर्थ जगत की खबरें और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ताजपोशी के लिए पूरी तरह से तैयार है अमेरिका। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही अमेरिका में आधिकारिक रूप से सत्ता डेमोक्रेट्स के पास चली जाएगी। वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेकर अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगी।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमायोर कमला हैरिस को शपथ दिलाएंगी। यह कार्यक्रम इस लिहाज से भी ऐतिहासिक होगा कि पहली अश्वेत दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाली सोटोमायोर पहली लैटिन अमेरिकन न्यायमूर्ति हैं। शपथ समारोह के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे ही वाशिंगटन डीसी को किले में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी गश्त लगा रहे हैं। चेहरों को ढके हुए हथियारबंद सुरक्षाकर्मी गाड़ियों की जांच भी कर रहे हैं। अमेरिकी संसद भवन के इर्द गिर्द के इलाके, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस के आसपास का बड़ा हिस्सा आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और इन स्थानों पर 8 फुट ऊंचे अवरोधक भी लगाए गए हैं। पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ समारोह लोकतंत्र के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जो बाइडेन अपने समर्थकों को वॉशिंगटन से दूर रहने और वर्चुअल तरीके से शपथ समारोह में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने विदाई समारोह में आखिरी बार अमेरिका की जनता को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम अब नए प्रशासन का स्वागत करते हैं और अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। विदाई समारोह में ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप और परिवार के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति माइक पेंस का भी आभार व्यक्त किया। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। क्या है खास खेल की दुनिया में, बताएंगे गौरव। से हमने देखा था कि पूरे देश ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया, लेकिन अब बात केवल क्रिकेट की ही नहीं होगी, बाकी खेलों की भी होगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को मानव रचना शिक्षण संस्थान में विश्व स्तरीय अल्टीमेट। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस प्रयास से आने वाले समय में कई खिलाड़ी निखरकर सामने आएंगे। इस समारोह में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और सुरेश रैना भी मौजूद रहे। हर खेल में आगे बढ़ना है, नई ऊंचाइयों को छूना है, देसी खेल के दायरे को ओलंपिक तक पहुंचाना है। जी हां, इसी जज्बे के साथ खो खो के खेल को नई जिंदादिली देने का काम खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो ने सामने रखा है। जहां खो खो को लेकर लीग की तैयारी तो दिखेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात खिलाड़ियों की पहचान, उनकी कमियों पर ध्यान और आगे बढ़ने का ज्ञान के प्लेटफॉर्म के रूप में कैंप की तस्वीर सामने है, जहां पर इन होनहार खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम होगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पहल को बेहद प्रभावी माना है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी, उसी दिन से उन्होंने ये नई मुहिम जो शुरू किया है कि खेलो इंडिया, भारत के कोने कोने गांव-गांव तक खेलो इंडिया का कार्यक्रम पहुंचना चाहिए। उसी मुहिम को आज हम आगे ले जा रहे हैं। इस कैंप जो हमने यहाँ पे लगाया है उसका उद्देश्य है कि विश्व भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्पोर्ट्स साइंसेस की और मेडिसिन की, जिससे कि विजेता तैयार करे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इस कैंप में हम लोग खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाएं और खिलाड़ियों को सबसे अच्छी सुविधा देके उनको चैंपियन बनवाएं। दरअसल खो खो को कबड्डी की प्रो लीग के तर्ज पर ही आगे बढ़ाने का पूरा प्लान है और जिसके लिए कई फ्रेंचाइजियों से भी बात चल रही है। फिलहाल अभी जो चल रहा है कि एशियन खो खो फेडरेशन और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलके इसको एक एशिया के रूप में एक बड़ा स्पोर्ट बनाने की एक कोशिश है, जिसका जो शुरुआत है वो अल्टीमेट खो खो ही हो सकता है। बट मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले एशियन गेम्स, उसके बाद ओलंपिक्स। खो खो फिलहाल ओलंपिक में शामिल नहीं है, लेकिन इस पूरी मुहिम का एक लक्ष्य ओलंपिक भी है, जिसके लिए प्रयास अपने स्तर पर हैं। एक बात तो तय है कि इस पूरे कार्यक्रम का जो पूरा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि देसी खेल का ये जो रूप है वो केवल देसी बनकर ना रह जाए, बल्कि इसका दायरा जो है वो और आगे बढ़े और आखिरकार ओलंपिक को छुए।
लेकिन इस सब के बीच में ये जो प्रयास हो रहे हैं वो बेहद सराहनीय है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि किसी भी मोड़ पर आकर ये प्रयास अपने राह से हटे नहीं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी खबर। बाकी के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। किसानों और सरकार के बीच संवाद का जो 10वां दौर है उसकी खबर हम बराबर आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। देश की बेटियों को समर्पित विशेष कार्यक्रम। जानेंगे देश की उन महिलाओं से जिन्होंने जिंदगी की तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया। बेटियां जिनका परिवार ने दिया साथ तो उन्होंने की हर बाधा पार। जिनकी जिंदगी हम सब के लिए एक आईना है। आइए मनाएं बेटियों की उपलब्धियों का जश्न। 3 दिन 3 अलग अलग एपिसोड। विशेष कार्यक्रम तेजस्विनी, देश की बेटियों को सलाम, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आपको पता है कि देश का स्पेस सेक्टर अब बनने जा रहा है नया सनराइज सेक्टर? 6000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां लगातार उन सॉल्यूशंस पे काम कर रही हैं जिसकी जरूरत है देश को। Bellatrix is one such company that we identified and believe is truly ahead of the curve. वो कौन से हैं 3 बड़ी कंपनियां जो हैं हमारे आज के स्टार्टअप चैंपियन, देखेंगे खास एपिसोड स्पेस सेक्टर पर। In the brand new episode of Startup Champions, don't just aim for the stars, but also reach out to them. Meet the best startups of India in the space sector. We'll also have with us Dr. K. Sivan, Chairman, ISRO. Definitely Government of India and ISRO take all the steps to mitigate the risk and ensure a conducive environment for the startups to carry out the space activities. This is the episode of Startup Champions that you cannot afford to miss. Hello, good afternoon and welcome to Midday Prime. I'm Gautam Roy. Over the next 1 hour, we'll bring you up to speed with all the updates that are coming in from across the country and the world. We'll tell you all about what's been happening as far as the farm agitation against the new laws is concerned, what is the latest that the Supreme Court is saying. We'll also get you in terms of all the updates that we're getting in what the country is doing to take the Made in India vaccines abroad as well, fulfilling a lot of requests from other countries and India's commitment to humanity. But first, as always, our big news of the hour. Prime Minister Narendra Modi releases financial assistance of 2,691 crore rupees to over 6 lakh beneficiaries in Uttar Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. The PM calls it a vital scheme to fulfill the vision of ensuring housing for all. Says previous governments didn't pay much heed to bridge the urban-rural divide. The PM says India committed to help all humanity fight the COVID pandemic. Supplies of Made in India vaccines to Bhutan, Maldives, Bangladesh
Nepal, Myanmar and Seychelles begin from today. Health Ministry says over 6,31,000 people vaccinated in the last 5 days in the country. Reiterates India's vaccines are the safest. In an endeavour to break the deadlock, the centre and farmer unions will continue another round of talks today. A meeting of the Supreme Court Constituted Committee is held earlier. IMD Minister Prakash Javadekar accuses the Congress leader Rahul Gandhi of misleading farmers. Supreme Court asks the centre to withdraw its plea against proposed tractor rally by farmers on Republic Day. The top court observes it's for the police to decide and take action. The court is not going to pass any orders. The 354th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji is being celebrated across the country and the world with great fervour and enthusiasm. The day is observed in honour and remembrance of the great warrior, poet, philosopher and spiritual master. It holds special significance for Sikhs and is considered one of their most auspicious festivals. In top news from abroad, Joe Biden to be sworn in as the US President today. Biden and Vice President-elect Kamala Harris attend a national memorial ceremony at the Lincoln Memorial for 4 lakh Americans who have died because of COVID-19 so far. In a farewell address, Trump celebrates his legacy, extends best wishes to the next administration. And in sports and cricket, India's squad for the first 2 test matches of the 4-match series against England at home announced. Virat Kohli, Hardik Pandya and Ishant Sharma make a comeback. First test match on the 5th of February to start in Chennai. Well, let's begin with the big news of the hour. Prime Minister Narendra Modi released financial assistance of around 2,691 crore rupees to 6.1 lakh beneficiaries in Uttar Pradesh under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen today. The assistance will include release of first installment to 5.3 lakh beneficiaries and second installment to 80,000 beneficiaries who have already availed the first installment of assistance under PMAYG. Under PMAYG, each beneficiary is given 100% grant of 1.2 lakh rupees in plain areas and 1.3 lakh rupees in hilly areas. The PM also interacted with beneficiaries and stressed that the scheme has empowered poor and given confidence. The PM added that houses are being constructed at a fast pace to realize the people's dreams. इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। The PM also said that